Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to another podcast with Fark Pashta Hai. So today we're going to be talking about a very crucial topic which is governance and its role in countering violent extremism. Our guest today is someone who has vast experience in this area. He is a co-founder for the Park Institute for Peace Studies and he needs no introductions. His analysis on security and politics are invaluable to this podcast. Thank you so much for joining us today. Thank you very much for having me. So, the topic we're discussing today is something that is a complete top down approach. Unless we have policies in place, we cannot work effectively towards building long term resilience. The first thing that I want to discuss on today's podcast is that governments worldwide face this dilemma where they want to balance हम चाहते हैं कि स्टूडेंट सिक्योरिटी मेजर्स भी हों और हम चाहते हैं कि कम्युनिटी इटसेल्फ अपने कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव से भी पॉलिटिक्स से काउंटर कर सके राइट सो इन योर ओपिनियन ऑल्सो योर एक्सपीरियंस हाउ डू यू थिंक इट्स पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट्स टू बैलेंस these two aspects of peace building? Yeah, basically it's depend on what kind of the challenge the state and society is facing. If the challenge is the non-kinetic measures, of course, then we have to adopt more soft measures. It's the kinetic, and I think is more muscular approach is needed. So I think the Pakistan case is really different and bit complex, and we lead the boat, and that's why at one hand we have national action plan, and we also have plenty of soft approaches based policies, like the national internal security policy. It contains a major component. It's based on soft intervention. And recently, the government has announced another policy. It's called the National Prevention of Extremism Policy. It's mainly based on all the soft approaches. But policies is not a big issue. And we are formulating these policies since 2007 and 8. And if I count, I think the government had introduced more than 13 policies, and most of them were based on the soft approaches and countering violent extremism challenge. But you see that the challenge of extremism is still here, and is keep transforming and keeping shapes, and the state is still in dilemma how to counter this manners. Oh yes, so this is how the things going on, and policy seems are not working well. Yeah, exactly. There has been a lot of deliberation कि किस किस्म की policies होनी चाहिए. Maybe हम उनको, like you said, 13 policies, we've been editing them. The change that we need to see, we're yet to see, which is concerning, and it is something that we need to work towards. कि ऐसा कौन सा balance है जो हमें strike करने की ज़रूरत है कि हम साथ साथ जो root causes को भी address करें. So while I'm talking about the topic of the root cause, पाकिस्तान में भी और वैसे भी वर्ल्ड वाइड रिसर्च ने शो किया है कि जो रेडिकलाइजेशन की रूट है ना वो काफ़ी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में है, जैसे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई या फिर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है. So you had a lot of experience in working with a lot of these sectors and you have written a lot about these topics. Well, I think the things are changing now, and और ख़ास तौर के ऊपर अगर हम इसको उर्दू में करने हैं तो ज़्यादा लोग इस बात को इस्तेफादा कर लेंगे. तो ये बहुत पुराना फिनोमिनन है कि गुर्बत और एम्प्लॉयमेंट जो है ये ट्रिगर करती है एक्सट्रीमिज्म को. दुनिया में आप देखें कि कितनी डिस्पैरिटीज़ हैं आपके नेबरहुड के अंदर भी. तो उन्हें तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं है, वो पाकिस्तान में ही क्यों है, और बहुत सारी जगह के ऊपर जो पाकिस्तान से मिलते-जुलते केस हैं. ये एक लोअर इनकम ग्रुप जो ट्रांज़िशन के अंदर होता है मिडल क्लास के, और उसकी क्लास की ट्रांज़िशन के अंदर ये फिनोमेनन बड़ी तेज़ी से होता है. और ख़ास तौर के ऊपर हमने रिसेंटली देखा कि जो मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं, और ये तो सिर्फ लिबरल बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो ट्रिगर करती है एक्सट्रीमिज़म को और एंगर को. एक्सट्रीमिज़म और एंगर अभी एक दूसरे के मुतबादिल वर्ड बन गए हुए हैं. एक्सट्रीमिज़म जो है एक डीप रूटेड एंगर का ही नाम है, जो थोड़ी सी आपके इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है ग्रुप्स के अंदर, और कभी जो है एक बड़े ट्रेंड के अंदर. तो दो ट्रिगर है. एक है आपकी जो इंटीग्रिटी है, आप भी समझते हैं कि आपको
ऑनर जो है वो मिल रही सोसाइटी से, स्टेट नहीं दे रही। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर के तौर के ऊपर है, और दूसरा गुर्बत और एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा सोशल फैक्टर से ज़्यादा जो है वो राइट्स की वायलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये पिछले कोई 7-8 साल में मुसलसल जो रिसर्चेज़ हुई है अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में, बांग्लादेश में, तो वो में एक खासी डायनामिक्स को चेंज कर दिया हुआ है। लेकिन अभी पाकिस्तान, अभी हम चूहों को उसी पुराने फ्रेमवर्क के अंदर देख रहे हैं कि जी ये गुर्बत है और ये पता नहीं अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर मैं आपको डाटा है आपको के साथ हम शेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जिन्होंने इन्कार किया है बड़े जुर्म का, दहशतगर्दी का, या जिनके नाम आते रहे हैं इंतहा पसंदी के हवाले से, उनमें से नाम बहुत कम जो है अनएम्प्लॉयड थे। उनमें से बहुत कम जो है वो अ, गरीब तबका से ताल्लुक़ रखते थे। हाँ, ट्राइबल एरियाज़ में कुछ केसेस के अंदर ऐसा हुआ, और लेकिन एक तो जनरल जो ट्रेंड बन जाता है, और एक मैस किसी के लिए में बन जाए एक्सट्रीमिज़म की, तो तब उसमें बहुत सारे लोग भी मुख्तलिफ़ क्लासेस से भी आ जाते हैं। तो डाटा हमें तो ले बताता है कि ये तो लोग जो है कोई और इश्यू है। आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट मिथ पर पर्स किया कि जो आप सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स प्ले करता है, लेकिन दुनिया में हर जगह ये मसाइल है, लेकिन हर जगह ये बस पीस बिल्डिंग का इतना बड़ा इशू नहीं आ रहा। सो इट्स वेरी यू इट्स समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट कि फिर जो अनफेयर ट्रीटमेंट है सिविलियंस का, इट्स ट्रिगरिंग समथिंग इन देम। This is a very important point that you've raised. So what do you think that now that we've identified this issue, एक गवर्नमेंट लेवल पे, एक पॉलिसी लेवल पे क्या किया जा सकता है कि हम लोगों की ये जो फ्रस्ट्रेशन है, या ये मे बी जो लाइक दे नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर, हाउ कैन वी रिड्यूस द रिस्क ऐसे फिर वो एक्सट्रीमिज्म की? देखिए, वो एक तो सेंस ऑफ कनेक्टिविटी फ़ील करो ना, स्टेट के साथ, सोसाइटी के साथ ही ये चाहिए। उन्हें लगे कि रियासत तो उनके जज़्बात का एहतराम करती है। देखिए, घर में जब कोई मसला हो तो सबको पता होता है कि जी आज जो माशी हालात ठीक नहीं है। तो लेकिन ये तो होता है कि सब मिल के कुछ ना कुछ फ़ैसला कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सब अभी तो यहाँ पे इस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिवाइड है सोसाइटी के अंदर। स्टेट एंड सोसाइटी के लेवल के ऊपर डिवाइड है, सोसाइटी इटसेल्फ डिवाइडेड है। जो हमारी जो एलीट है, वो खासी फ्रैक्चर्ड है, और फ्रैक्चर्ड एलीट जो हैं, वो यूनाइट नहीं कर सकती सोसाइटीज़ को। और ये एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है ग्लोबली कि एलीट का जब इंटरेस्ट जो है क्लैश करे, तो तब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी अहलियत और उसकी काबिलियत जो मुतासिर हो जाती है, चीज़ों को कोहेसिवनेस के अंदर कन्वर्ट करने में। बिल्कुल। गोइंग ऑफ ऑफ व्हाट यू मेंशन्ड टू के जो आप हमारी गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस हैं और जो हमारे जनरल पब्लिक है, उनके अंदर एक डिवाइड है, मे बी एक लैक ऑफ ट्रस्ट हम कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपके एक्सपीरियंस किट से हम ये लेसन और ये नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकें कि ऐसे क्या चीज़ है जिससे ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हो सकती है? गवर्नमेंट लेड इंटरवेंशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है उन पर। तो हाउ डू यू थिंक वी कैन इम्प्रूव दैट? देखिए, ये एक पॉलिसी के ऊपर तो अभी हमने बात नहीं की, अभी तो हम जनरल ट्रैवल्स की बात कर रहे हैं। पॉलिसीज़ की बात करेंगे, तो फिर हम उसका थोड़ा-सा क्रिटिकल अप्रेज़ल ले लेते हैं। और सारी नेशनल एक्शन प्लान से लेके अभी तक नई पॉलिसी का, जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, पिछले महीने गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, तो उसमें से कितने परसेंट जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, एक तो ये। और ये पॉलिसीज़ बनी कैसे? नेशनल एक्शन प्लान के अलावा जितनी पॉलिसीज़ बनी, वो ख़ास किस्म के लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स से बनाई। कॉपी पेस्ट का एक पूरा एक प्रोसेस यहाँ पे चलता है, और जहाँ से कोई अच्छा प्रोग्राम मिलता है, तो उसको ये कॉपी कर लेते हैं। जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो ग्लोबली, एक दूसरे से के एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करना, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना कि क्या ये चीज़ हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी काम कर सकती है या नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ तक तो अब उसके ऊपर, जब आप इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप बातचीत करेंगे, लोगों से देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे, डाटा आप होगा तो तभी होगा। प्रोसेस ये है कि आप कहीं से चीज़ उठाते हैं, और एक खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि अगर लोगों को पता चल गया ये हमने कॉपी पेस्ट किया है, तो फिर होगा क्या? फिर होता है पॉलिसी को आप बना के उसको फाइल में बंद करके रख देते हैं। और बहुत कम पॉलिसीज़ जो है यहाँ पे
शेयर होती है। नेशन प्लान इसलिए बहुत काम की बात थी कि उसमें पूरी कौम का कंसेंसस था। उसमें जो मनी कैबिनेट के अंदर अप्रूव हुई, उसके ऊपर डिबेट हुई, तमाम सियासी मजहबी जमातों ने उसके ऊपर एग्री किया। तो इसलिए वो पॉलिसी तकरीरन उसका 30 to 35% उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। ये बाकी किसी पॉलिसी के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई बनती है, और वो आप उसके कोल्ड स्टोरेज के अंदर फेंक देते हैं। तो जिस जिस पॉलिसी का जिक्र करेंगे ना, आपको बता दूंगा कितना इम्प्लीमेंट हुआ है और कितना नहीं हुआ। Exactly. So I think the one that you mentioned जो highlight की ज़रूरत है कि पॉलिसी कैन ओनली as successful as जितने सेगमेंट्स को आपने लेके चले हैं while developing them and while planning their implementation as well. इसी तरह आजकल को जो एक बहुत प्रेसिंग इशू है वो है डिजिटल सिक्योरिटी। अब यूथ सारी सोशल मीडिया पे राइट, पर ऑल्सो एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे इनके पास रिलीजियस आइडियोलॉजीज आ रही हैं, उनके पास radicalization के वो भी आ रहे हैं और काउंटर करने के लिए आपको राइट दी है राइट। सो हाउ डू यू थिंक वी कैन बैलेंस कि हम एक टाइम पे सर्वेलेंस भी रखें जो एआई सर्वेलेंस आजकल तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो जो नई पॉलिसी है उसके अंदर भी एक बड़ा कंपोनेंट है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखेंगे और साइबर स्पेसेस को देखेंगे, सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे। ये अप्रोच सारी पॉलिसीज़ के अंदर ही है। और ये जो रियासतें खौफज़दा होती हैं, देखिए मैंने कहा ना कि स्टेट और सोसाइटी का गैप चल रहा है, और एक ट्रस्ट मिसट्रस्ट चल रहा है। तो उसमें तो ये इस तरह की जो अप्रोचेज़ हैं वो तो मज़ीद जो है फाइट बैक कर जाती है, लोगों का मिसट्रस्ट बढ़ जाता है। उसमें है क्या, अभी ये जो नई जनरेशन है, जेनज़ीज़ हैं, अब अल्फ़ा जो है वो भी उसके हाथ में भी सेल फ़ोन आ गया है, तो उसके चैलेंजेस को समझना चाहिए। ये सेल फ़ोन का इस्तेमाल कि ये आपको बहुत अच्छा आदमी भी बना सकता है, बहुत बुरा आदमी भी बना सकता है, ये आपको दहशतगर्द भी बना सकता है, इंतहापसंद भी बना सकता है, कामयाब बिज़नेसमैन भी बना सकता है। इसके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं जो आप जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं, ठीक है? अब उसमें सोसाइटी तो देखेगी कि मेजर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। आप बेशक कहें जी कि सर्वेलेंस कर रहे हैं, सर्वेलेंस से और पकड़ लोगों को अंदर करते हैं, तब तक ये चीज़ें नहीं है। ये जब सोसाइटी के ओवरऑल टर्न नहीं चलेंगे, वो पॉजिटिव नहीं होंगे। बहुत सारी ऐसी कुव्वत है पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में, हमारे समाजी ग्रोहों के अंदर, लोकल सतह पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर, अगर थोड़ा सा उनको पुश किया जाए, थोड़ा सा पुश किया जाए, तो इतना पोटेंशियल है कि बहुत बड़ी तहरीक के अंदर आ सकते हैं। अब होता है कि उनका सारा पोटेंशियल जाता कहाँ है? सारा पोटेंशियल उनका सारा पैसा, खा एक गरीब आदमी मज़दूर हो, अगर उसने चंदा करना है, वो किसको देगा? मस्जिद को देगा, मदरसे को देगा। वो अपना कंट्रीब्यूशन किसी वेलफेयर सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ईदी फ़ातिमी जैसे इदारों को जो है वो चैरिटी का 10% भी नहीं मिलता, ठीक है? उससे आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? और ये कितनी चैरिटी है जो लोकल स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको सपोर्ट करती है, जो कोई कहते हैं जी कि हम अपने इलाके में डिस्पेंसरियां बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सफाई करेंगे, सोशल अवेयरनेस, ये हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं हर छोटे छोटे शहर में। तो उस उन स्ट्रक्चर्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना रियासत करती है और ना ही सोसाइटी करती है, क्योंकि उनको लगता नहीं है कि इससे उनको कोई फ़ायदा होगा, है ना? उनको लगता है जी कि मस्जिद में देंगे पैसे, 2 चीज़ें होंगी उनका, एक तो टैक्स रियासत को पे नहीं करना हमने, किसी दुकानदार ने, ताजिर ने, मस्जिद को पैसे देगा, मौलवी को चंदा देगा, ये बहुत बड़ा सोशल इशू है। उसको देगा, कहेगा टैक्स नहीं दूँगा। वो कहता है जी कि रियासत को मैं क्यों दूँ पैसा? मैं टैक्स क्यों दूँ? है ना? टैक्स चोरी को वो चंदा दे के मौलवी को जस्टिफ़ाई कर लेता है, उसकी गिल्ट ख़त्म कर लेता है। तो सोशल ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसे होगी? आप की पॉलिसीज़ के अंदर लिखा हुआ है एजुकेशन में तब्दीली करेंगे, निसाब में तब्दीली करेंगे, ये करेंगे, मदारिस में तब्दीली लाएँगे, यूथ को एंगेज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे, ढोल ढमक्के करेंगे, आर्ट एग्ज़िबिशन्स करेंगे। हो रही हैं, सो व्हाट? ये छोटे से लेवल के ऊपर होती हैं, उससे तस्वीरें बनती हैं अच्छी, तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी ये डाल देते हैं, उससे ऐसी चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होती हैं। हाँ। बिल्कुल, ऐसा ही है। तो अभी आपने यूथ का भी मेंशन किया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने कि पाकिस्तान में तो यूथ एक मेजर सेगमेंट है पॉपुलेशन का। और इससे आप कह रहे हैं कि उनको ये परफॉर्मेटिव सी एक चीज़ नज़र आ रही है कि अच्छा ये मेला हो गया, ये वो हो गया। और एट द सेम टाइम हमें इंश्योर करना है कि जो भी उनके ना वो इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म हो। तो
आपने यूथ के साथ काफ़ी काम किया है। इस पे अगर आप थोड़ी-सी लाइट शेड कर दें कि कैसे हम यूथ को एंगेज कर सकते हैं पीस बिल्डिंग में ताकि वो वाक़या रिलीज़ पे बच सके? देखिए, अभी मैंने कहा ना कि स्ट्रक्चर्स तो हैं मौजूद, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है, ना स्टेट की, ना सोसाइटी की। और यूथ जो है, नौजवान, वो ख़ासा कन्फ्यूज़ है। वो तब्दीली तो चाहता है, उसको पता नहीं कैसे तब्दील, उसको तो ये नहीं पता मैंने खुद को कैसे तब्दील करना है। तो ये भी एक और बड़ा मसला है। उसको तो ये भी नहीं पता कि जो डिवाइस वो यूज़ कर रहा है और जो स्क्रीन उसको देख रहा है कि उसको कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहा है। जो चैलेंजेस अपनी जगह के ऊपर हैं, आप ऊपर से देखिए, याद रखें कि जब सरकारी मीडिया और सरकारी इदारे इस तरह के काम करें, तो वो शक रहता है लोगों का, तो ये रियासत क्यों कर रही है? कोई एजेंडा है का एजेंडा है और सारी चीज़ें हैं। अ, किसी भी इंटरवेंशन या किसी भी इनिशिएटिव से बेहतर ये होगा कि the youth would focus on their own well-being and their grooming, making sure कि they're doing the best they can. So that is very insightful. Other than that, I would want to ask कि what do you think कि अगर कोई आप एग्जांपल शेयर कर सके कि कोई इनिशिएटिव जो चाहे कम्युनिटी लेड हो या चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, जो आपको लगता है कि ये एक एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने बाद में इंटरवेंशन डेवलप करनी है तो ये एक अच्छी एग्जांपल है। पाकिस्तान में छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स होते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अभी फ़ौरी तौर के ऊपर मेरे ज़हन में ना ना क्योंकि बेतहाशा एनजीओज़ करती हैं काम इधर, सोसाइटीज़ भी करती हैं। तो लिटरेरी उसमें कॉन्टेक्स्ट में तो हम कहें कि एक बहुत सारे अदबी सोसाइटी हैं पूरे पाकिस्तान में, हल्का रबाब ज़ौक़ है, वो ख़ुद अपनी मदद आप के तहत चलते रहते हैं। वो एक ख़ास क्रिएटिव यूथ को एंगेज करते हैं। इसी तरीके से आर्ट के पूरे पूरे सर्कल्स हैं। स्पोर्ट्स क्लब है। लोग अपने इनिशिएटिव्स लेते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ये अभी बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कोई मैसिव लेवल की चेंज पाकिस्तान में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की मूवमेंट नहीं चली। हाँ, लेकिन ये बहुत हुआ है कि पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपी का बहुत बड़ा कल्चर है। उसमें एक मेजर हिस्सा हमने डिस्कस किया कि मज़हबी जमातों, मज़हबी चैरिटीज़ को भी जाता है। वो अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन बाकी जो फ़ोकस्ड हैं, मतलब फ़ातिमी ईद का एक अपना है और एजेंडा है, ईद ही की एक अपना डोमेन है। तो ये उनको पैसे तो कम मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक बड़े पॉज़िटिव एक इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान की पहचान है इंटरनेशनल सतह के ऊपर। तो उसी को थोड़ा-सा आगे करना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए। बाकी दावे करने में तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन ये वो स्ट्रक्चर्स हैं। अब मुझे ये भी नहीं लगता कि इन स्ट्रक्चर्स को आप छेड़ेंगे जाके, उनको आप मज़ीद ख़राब करेंगे या उसमें कोई बेहतरी लेके आएँगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा जो खुद अपने सेल्फ़ उस इनिशिएटिव पे जो चल रहे होते हैं, तो उसी वक़्त वो कामयाब होते हैं जब तक लोग उसमें खुद कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, खुद हिस्सा ले रहे होते हैं। जैसे उनको कहीं बाहर से किसी एनजीओ की, कभी रियासत की, कभी बाहर से कोई पैसे आ जाएँ, तो वो उनके स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाते हैं। द क्रक्स ऑफ आवर डिस्कशन इज़ कि इंडिविजुअल एफर्ट्स यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है? कम्युनिटी ड्रिवन भी हैं और यूथ की तरफ से भी हैं। पर उनका इम्पैक्ट कितने हद तक है ये इट्स येट टू बी सीन। एट द सेम टाइम वी सी के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की भी इनइफेक्टिवनेस की एक वजह ये हो सकती है कि सब कम्युनिटीज़ को साथ लेके नहीं चला गया। जैसे आने हाँ, बिल्कुल वो इंक्लूसिव नहीं है, बहुत एक्सक्लूसिवली बनती हैं। और इंक्लूसिव से मुराद जब कहते हैं, बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट क्लेम करती है, मसलन जब मोईद यूसुफ ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, तो उन्होंने जो आईआर के डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, बेचारों का व्यू क्या होता है कि वो जीबी के अंदर बैठे हुए हैं बहावलपुर में, कराची, उनको इकट्ठा करके पूछें जी कि ये ठीक है? उस सबने गर्दन हिलानी कि ठीक है। इस तरह की ये इंक्लूसिविटी नहीं होती। इंक्लूसिविटी होती है, हाँ, मीनिंगफुल होती है कि हर एरिया से देखें कि उनके के डायनामिक्स क्या है, सोशो कल्चरल पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है, लोग कैसे सोच रहे हैं और चाहते क्या हैं, फिर उनको मर्ज करें। आप जाके पहले 4 स्लाइडें बना के कि आप एग्री करते हैं, आप तो वोटिंग करवा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। ये मेरा ख़्याल है कि पॉलिसी बहुत इंक्लूसिव नहीं है, पार्लियामेंट में जाना चाहिए और पार्लियामेंट से ही ड्राइव होनी चाहिए स्ट्रेंथ। पार्लियामेंट ही गाइड करे कि अब ये इदारे हमें इस तरह की पॉलिसी बना के दें, इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करें।
Thank you so much, sir. Thank you so much for that insightful discussion. What we can see is कि जब तक गवर्नमेंट और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स के डिवाइड ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक हम सब कम्युनिटी के साथ लेके नहीं चल सकते, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हों, जो भी हो, उस सबको अगर हम एक पेज पर नहीं ला सकते, तो ये एफर्ट्स किसी इम्पैक्ट हम उनका नहीं देख पा रहे पाकिस्तान में जिस तरह हमने देखा है. So thank you so much for tuning into this podcast, and we'll see you in the next one, inshallah. Thank you.